A peaceful dharna is being organized by the Arunachal Pradesh Student Union Maharashtra. Let us know their demands on why they are putting up dharna in tennis court. Can you please tell us the charter of demands आप जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे धरना कर रहे हैं? Charter of demand is as follows: restoration of Arunachal Bhavan, appointment of deputy residential commissioner come uh, assistant residential commissioner with supporting staff. It will ease the movement, the functioning of the Bhavan, and official clarifications from the concerned departments, the shareholders, for neglecting the loan Bhavan in Maharashtra for so long a time, and handing us the MOA and the MOU signed between Arunachal government and SIDCO and APDFC and US Roof. That's our charter of demand. Okay, so tell us जो इतने सारे यूनियंस आए हैं कहाँ से हैं आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए? सी हमारा तो आइसोफ बैनर के अंदर में ऑलरेडी 10 यूनियन है ही है. डेट आर अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन ऑफ दिल्ली, अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन ऑफ कर्नाटका, अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन ऑफ तमिलनाडु, अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन ऑफ शिलोंग, then Guwahati Arunachal Student Union, and Himachal Student Union, Madhya Pradesh, Chandigarh, Maharashtra. So you can take apart from inside Arunachal, the outside federal, we all are together in our stand. Moreover, apart from the outside student unions, the Karadadi Student Union is here, the colony youths are also here, Polo Youth colonies, and clan base is also here, Tani clan organizations, they are also here. So these all are the organizations. Many more are willing to come, and one more, RGSU are also here, DN, GC are also here, Duimuk Government College are also here, all is coming, Capital Complex Student Association is also here. So there are many more apart from this who are willing to come, who will be joining us in the coming time. Okay, so it's good to see many students are supporting the issue. Can you please tell us the slogan they are shouting, the protesters are doing, chor hai, FDFC chor hai? To elaborate this, chor hai bhai chor hai, APDFC chor hai. It's a shameful quotation which is being earned by, it's being, needless to say, I'll stress on this, earned by APDFC department. This is not a self-made quote, it's a quote earned by APDFC department. After this 11 months of struggles, the findings, the running, we have come to the conclusion that APDFC chor hai. APDFC is the real culprit, the only department who is responsible. स्टार्टिंग ही उसने गलत कर दिया, स्टार्टिंग गलत हो गया तो अभी उसको सुधारने के लिए भी नहीं कर रहा है. सो द कोर्ट, चोर है भाई चोर है, एपीडीएफसी चोर है. द 10 crore upfront money was also paid to एपीडीएफसी डिपार्टमेंट. तो उसने मतलब बड़ी ही बेशर्मी से उसने ये नाम कमाया कि एपीडीएफसी चोर है. इसमें हमारा कोई बनावट नहीं, वो खुद ऐसा कोर्ट वो खुद अर्न किया है. इसके बाद आप कौन से डेमोक्रेटिक मूवमेंट में आप आगे जाओगे अगर आपके डिमांड्स पूरा नहीं होगा? इसकी डिमांड पूरा नहीं होता है तो देखिए मैं फिक्स नहीं बोलूँगा कि कौन सा डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे. बहुत सारा है डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पर हमारा तरफ से डेमोक्रेटिक मूवमेंट कंटिन्यू होगा. कब होगा, कैसे होगा, वो आपको मैं अभी नहीं बता पाऊँगा. अल्टीमेटम दिया था, अल्टीमेटम तो 30 दिसंबर तक ही दिया था. तो अभी नो मोर अल्टीमेटम, नो मोर रिप्रेजेंटेशंस, ओनली स्ट्रेट टॉक. आप आइए मीडिया का सामने, अगर आपको कुछ कहना है, नो प्राइवेट टॉक, नो क्लोज रूम मीटिंग, आइए बताइए. आपको जितना समय लेना था हमने दिया, जो आपने मांगा वो हमने किया. और हमको तो नहीं लगता है कि एपीडीएफसी डिपार्टमेंट को हम लोग से कोई गिला शिकवा होना चाहिए. इतना ओबीडियंट स्टूडेंट बना है, जो समय मांगा दिया है. 15 डेज एक्सटेंड करो बोला, हम एक्सटेंड किया है. 1 महीना दिसंबर 30 तक भी कर दिया. उतना तो कुछ तो होना चाहिए ना. कितना ना तकलीफ़ है उसको प्रेस का सामने आके पब्लिक को बताने में कि क्या है. वो जो चेयर पकड़ रहा है वो क्या उसका मतलब, आई एम रिस्ट्रेनिंग माई सेल्फ फ्रॉम स्टेटिंग दैट, बट वो चेयर आपका पापा का नहीं है ना.
वो आपका खरीदा वाला चेयर नहीं है ना, आदमी है इसलिए आपको वो चेयर बना के दिया गया है ना, तो आपको उस चेयर का कदर होना चाहिए। यू शुड वैल्यू दैट चेयर। आप बोलना नहीं चाहिए कि वाई यू आर सिटिंग ऑन दैट चेयर में बैठ गया तो मतलब मनमानी है। दूसरा को जब तक मतलब खुद पे बाधा नहीं आएगा, तकलीफ़ नहीं आएगा, तो कुछ भी है। दूसरा का तकलीफ़ नहीं, आपका तकलीफ़। दैट्स सच ए सिंपल थिंग। वीडियोस दिखाने के बाद तो हम लोग को यहाँ आने ज़रूरी नहीं पड़ना चाहिए था। क्या वीडियोस मतलब नकली है क्या, एडिट है क्या? ऐसा नहीं है, लाइव वीडियो भी दिखाया उसको। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग को बहुत दुख का साथ आज यहाँ धरना में आना पड़ रहा है। आगे तो मूवमेंट कंटिन्यू होगा और कब कैसे वो नहीं होगा, लेकिन इशू का जब तक कोई ढंग का सॉल्यूशन नहीं आएगा, आप लोग मीडिया लोग का सामने में जो होगा वो खुलासा किया जाएगा। ये आज हम लोग क्या बोलते हैं मुद्दा उठाने का वजह तो सब तो अभी लाइव में जा रहा है, सब पता ही है। लेकिन हम अभी एक टेस्टिमोनी दे रहे हैं, मतलब उधर में जब हम फर्स्ट टाइम आया है कि भवन में हमको कैसे सपोर्ट मिला है, लेकिन चौथा से होने से भी सपोर्ट मिला है, लेकिन वो कैसे हम लोग के लिए मतलब एक उधर में हम लोग जब बाहर में जाते हैं तो अनाथ जैसे हो जाता है। कोई किसी को पहचान नहीं है, जान ना पहचान, ऐसे होने से कितना तकलीफ होता है। जब स्पेशली जैसे हम लोग का गरीब जाने से कितना हेल्पफुल होता है ना, और हेल्पफुल होता है। उसको नज़रअंदाजा करते हुए अमीर लोग तो ये जैसे गवर्नमेंट लोग, वो लोग तो अमीर है, कहीं होटल में बुक कर ले, लेकिन हम लोग का तो कुछ कहीं जगह नहीं होता है बैठने के लिए, रेस्ट नहीं। हम लोग का तो एक उम्मीद ही होता है, भवन होता है, मतलब उसमें पैसा होने से भी कम से कम 300 400 500 में हो जाएगा बोल के हम लोग इतना कैलकुलेट करके जाता है। लेकिन जब उधर पता चलता है हम लोग के लिए जगह नहीं है, कोई किसी के लिए जगह नहीं, बस कैंसर पेशेंट के लिए जगह होता है बोल के जगह होता है। लेकिन उसमें भी क्या है, कैंसर पेशेंट को भी जब आता है तो आप फ्लोर में सोने देता है ना, तब सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है। अब जब कोई कैंसर पेशेंट उधर में जगह नहीं होता है और होटल का पैसा भाड़ा देना पड़ता है, दिन में 5000 6000 देकर एक्सपेंड करके बिताए, और लास्ट में और ट्रीटमेंट करने के लिए वो लोग को पैसा नहीं होता है। ऐसे नहीं हो कि जब वो लोग ट्रीटमेंट हो सकता है पर भी नहीं हो पाता है, हो पाने का वजह से वो लोग क्या होता है, लास्ट क्या बोलते हैं, मरना ही है बोल के वो लोग यहाँ से सलेंडर होकर अपना पैसा का वजह से, फाइनेंस का वजह से वापस आता ना, तब हम लोग को सबसे दुख लगता है ना। हम लोग का छोड़ो ना, हम लोग तो स्टेशन में भी कहीं में भी ऐसे नहीं मिलने से सो जाएगा ना, लेकिन तब हम लोग को सबसे ज़्यादा दुख लगता है, आँख में आंसू आता है, दिल से आंसू आता है। तब आता है जब कोई कैंसर पेशेंट आप पैसा का वजह से, मतलब डबल खर्चा करने का जगह होने का वजह से, पैसा शॉर्टेज का वजह से आप कोई उधर में सलेंडर होके हम नहीं सकेगा, मेरा पैसा शॉर्टेज हो गया बोल के अभी मेरा, और जानते हुए भी मेरा इलाज हो सकता था, ऐसे जानते हुए भी जब कोई ऐसे सलेंडर होके वापस आता है तब हम लोग को दुखी होता है। और जब हम 2018 का 1 जनवरी को जब हम आया था, भवन ही मेरा एक सहारा था, क्योंकि मेरा उधर कोई पहचान नहीं था ना, तो उधर में हम नहीं जानता था कौन है बोल के। मेरा कोई सीनियर था तो वो लोग का मदद से लेके, मेरा पास भी इतना पैसा नहीं था ना जो इधर में होटल में स्टे कर सकता है, और कोई किसी को पहचान नहीं था। जब हम एडमिशन किया था तो भवन एक स्टे था ना, लेकिन जब आया तो क्या हुआ, तो इधर में हम लोग का जो सीनियर था वो लोग लड़ के थक चुका था, ऑलमोस्ट थक चुका था। वो लोग न्यूज़पेपर, मतलब वो लोग का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था। मुंबई में अबसुम बोल के एक यूनियन था, वो भी क्या गया, उसमें भी मुंबई में मिनिमम क्या होता है, आदमी पढ़ाई करने जाता है, जो स्टूडेंट होता है बहुत डेडिकेटेड वाला यूजली जाता है, तो वो सब ज़्यादातर लोग ये सोशल कोर्स में वो लोग इंटरेस्ट नहीं देता है। इंटरेस्ट नहीं देने से ऐसे हो गया, मुंबई में भी यूनियन में भी बहुत कम गिना चुना स्टूडेंट जो सोशल कोर्स के लिए जो अपना स्टेप अप करता है वो लोग बहुत कम होता है। इसका वजह से क्या हो गया, वो भी खोने वाला था। तो हम लोग जब 2019 को क्या बोलते हैं, फिर हम लोग महाराष्ट्र स्टूडेंट यूनियन फॉर्म किया, तब हम लोग डिस्कस किया कि नहीं, जैसे भी हो ये भवन का इशू को उठाएगा। ओके, तब से लेके आज तक हम लोग उठाए, आज तक सक्सेस नहीं हुआ है ना, सक्सेस नहीं हुआ है। अभी तक कितना सारा पेशेंट्स आया है मुंबई में, और कितना सारा को बैठने मिला है वहाँ? अब आप मान लो आप 10 आदमी को आप पेशेंट आया है बोलने से कम से कम आप 1-2 ही को एडजस्ट कर पाता है, क्योंकि पहले से तो क्या बोलते हैं आप उधर में भर्ती होता है। और कैंसर पेशेंट तो क्या बोलते हैं, केमो लेने वाला तो 1-2 दिन के लिए नहीं आता है, 4-5 महीना, कोई साल भर केमो लेके बैठता है, ऐसे वाला बेच जाता है। और जो नया आता है वो लोग को जगह ही नहीं होता है ना, ऐसे नहीं क्या काम में बैठेगा, ऐसे हो गया। बहुत कॉल तो बहुत आता है। और उस दिन हम कहीं सेंसस में पढ़ रहा था, हम लोग का अरुणाचल एक ऐसी जगह है जो इंडिया का हाईएस्ट क्या बोलते हैं कैंसर पेशेंट जो निकालता है बोल के ना, वो जानते हुए भी। और एक तो क्या बोलते हैं मुंबई, मतलब जो क्या बोलते हैं स्पेसिफिक जो सब जानता है ना, क्या बोलता है उधर में ट्रीटमेंट हो सकता है, तो उधर ही सब आदमी प्रिपेयर करता है आने के लिए।